Assalamu alaikum first year. I am back with the new lesson for you. This is lesson number 5 of book 1 short stories. The title of the lesson is The Piece of String, and I also hope that all of you are fine and getting a great benefit from online learning system which is working excellently by NPS teachers. Before starting the lecture, I would like to read the theme for you. The theme of the story is at page number 34. Rotate your screens if you are having a cell phone in your hands, and if you are using your textbook, just open your book at page number 34. Theme. One of the author's favorite ways of telling a story is to tell it as though he had personally been involved in it. The teller of the story has no part in the events, but telling it in this way helps make it real. The piece of string depicts the hard facts of life. It is written in simple way, understandable for the common reader. It is a story of rural life where cow and calf can be seen. So, this is a simple rural type of story. And the important thing is the author's personal involvement in the story. Author's personal involvement in the story makes the story very real and interesting. And the other thing is the story tells us about the hard facts of life. The main character in the story, Hubert, was very economical. So, the main character of the story is Hubert. And what type of person Hubert was? He was very economical. Economical means frugal. Frugal mean careful, कफ़ायतशार. अब कहानी है ह्यूबर्ट के बारे में. बड़ा कफ़ायतशार किस्म का बंदा था. एंड ही वॉज ऑफ द व्यू डेट एवरी यूज़फुल थिंग ऑट टू बी पिक्ड अप. और उसका ख्याल ये था कि हर मुफीद चीज़ को संभाल लेना चाहिए. पिक्ड अप उठा लेना चाहिए, संभाल लेना चाहिए. ही टुक द बिट ऑफ थिन कॉर्ड. अब हुआ यूं कि उसने एक बारीक डोरी का छोटा सा टुकड़ा उठाया. बिट पीस थिन कॉर्ड, बारीक डोरी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया. विच लेड हिम टू ट्रबल. और ये बात उसके लिए मसले का बायस बन गई. एंड नो वन बिलीव्ड हिम डेट ही हैड पिक्ड अप द स्ट्रिंग. और कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता था कि उसने सिर्फ डोरी उठाई है. ही डाइड इन एगनी. और इसी अजियत में, इसी इल्ज़ाम की अजियत में वो उसकी चल बसा, उसकी डेथ हो गई. द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज़ डैट. कहानी का मरकज़ी ख्याल ये है डैट प्रोटेक्टिंग योर इनोसेंस मेक्स मोस्ट पीपल बिलीव यू आर गिल्टी. प्रोटेक्टिंग योर इनोसेंस कि अब जितना ज़्यादा अपने आप को डिफेंड करते हो लोगों के सामने, मेक्स मोस्ट पीपल, उतना ही ज़्यादातर लोग बिलीव, ये समझते हैं, यू आर गिल्टी, कि कसूरवार आप ही हो. इट मीन्स डैट बाय गिविंग ओवर एक्सप्लेनेशन ऑफ योर कैरेक्टर, by protecting your innocence time and again makes most people think that you are the guilty. इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप लोगों को कहोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्लेन करोगे कि जी मैंने ये नहीं किया कसम से, जितना ज़्यादा आप मस्कीन बन जाओगे उनके सामने, मैंने ये नहीं किया, मैंने इस तरह से नहीं किया, मुझसे कसम ले लो, खुदा गवाह है, उतना ही ज़्यादा लोग जो है वो आप पे शक करेंगे. सो the theme of story can be that the overprotecting your innocence can lead people think that you are the guilty person. The second theme of the story is the criticism on the low mentality of the people. It is the low mentality of the people that they were not ready to believe Hubert, because Hubert was not a man of any importance. He was a poor, simple, innocent person. He was simply a rustic, a farmer or a rural person. So, तो जो है वो लोगों पे भी तनकीद है कि लोग जिस माशरे में इंसान की कोई इतनी वो किसी पोजीशन या स्टेटस पे नहीं है तो उसकी बात को भी कोई अहमियत नहीं देते. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी.
the transition of the story. It's upon page number 32. The piece of string. At the end of market day, the rich people with vehicles of all kinds, cars, gigs, wagons, dump carts, gather at a great big hall for a great meal. Okay. At the end of market day, कारोबारी दिन के खात्मे पर द रिच पीपल, अमीर लोग, विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, तमाम तरह की गाड़ियों में. कारोबारी दिन के अख्ताम पर अमीर लोग तमाम तरह की गाड़ियों में, कार्ट्स छकड़े, गिग्स घोड़ा गाड़ियों में, वैगन को वैगन ही कहेंगे, एंड डंप कार्ट्स और सामान लादने वाले छकड़ों में, गैदर्ड इकट्ठे हुए, एट अ ग्रेट बिग हॉल बहुत बड़े हॉल में, फॉर अ ग्रेट मील बहुत बड़ी दावत के लिए. ठीक है. कारोबारी दिन के अख्ताम पर तमाम अमीर लोग तमाम तरह की सवारियों में, छकड़ों, घोड़ा गाड़ियों, वैगनों और सामान लादने वाले छकड़ों में एक बहुत ही अजीम हॉल में बड़ी ही पुरतकल्लुफ़ और शानदार दावत के लिए जमा हुए. नाउ नोट द वोकेबलरी. मार्केट डे मीन्स बिजनेस डे. कार्ड्स छकड़ों को बोलते हैं, बैरोज बोलते हैं, पुश कार्ड्स होते हैं. व्हीकल्स लॉरीज होती हैं, गाड़ियाँ. वैगन्स डंप कार्ड्स होते हैं, ये वो कार्ड्स होते हैं लाइक हैवी ट्रक विच कैरी द मटीरियल. एंड गिग्स क्या होती हैं? गिग्स होता है 2-wheeled व्हीकल ड्रिवन बाय 1 horse. ग्रेट मील बहुत बड़ी दावत बड़ी हो तो हम उसको बोलते हैं ज़ियाफ़त, और ज़ियाफ़त की इंग्लिश होती है फीस्ट, FEAST, फीस्ट. सो हियर द क्वेश्चन इज क्लियर. Why did the rich people gather at a big hall? So, the rich people with vehicles of all kinds, carts, gigs, wagons, dump carts, gather at a great big hall for a great meal. There were chickens, pigeons, and legs of mutton in the roast. Now, what type of dishes were served there? There were chickens, वहाँ पे थी मुर्गियाँ, pigeons कबूतर, legs of mutton और बकरे की रानें in the रोस्ट की हुई. वहाँ मुर्गियाँ, कबूतर और बकरे की रानें रोस्ट की हुई थीं, भुनी हुई थीं. एंड एन एपेटाइजिंग ऑर्डर और भूख बढ़ाने वाली खुशबू ऑफ रोस्ट बीफ, भुने हुए गाय के गोश्त की. नाउ लिसन. वहाँ पे मुर्गियाँ, कबूतर और रोस्ट किए हुए बकरे की रानें और रोस्ट किया हुआ गाय का गोश्त गोश्त की खुशबू भूख को बढ़ा रही थी. लीफ एंड ग्रेवी. लीफ पत्ता, यहाँ पे सैलड को बोलेंगे. लीफ एंड ग्रेवी होगा मसालेदार शोरबा. ठीक है, क्योंकि वैसे भी शोरबे की सूप वगैरह और भी इंग्लिश हो सकती है, लेकिन जो टिपिकल ग्रेवी होती है ये कौरमे वगैरह की होती है. मसालेदार शोरबा ड्रिपिंग ओवर, टपक रहा था. द ब्राउन स्किन, भुने हुए गोश्त पे सलाद और टपकते हुए शोरबे ने विच इंक्रीज द एपिटाइट, भूख बढ़ा दी. दोबारा से सुन लें. भुने हुए गोश्त पे सलाद के पत्ते और शोरबा टपक रहा था जिससे भूख बढ़ गई. एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर, और हर एक के मुंह में पानी आ गया. एवरीबॉडी टोल्ड हिज अफेयर्स, हर एक ने अपने कारोबारी मामलात के बारे में बात की. हिज परचेजेस, अपनी ख़रीद के बारे में. सेल्स, अपनी फ़रोख्त के बारे में. हर एक ने अपने कारोबारी मामलात, ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में बात की. द डाइनर्स डिस्कस द क्रॉप्स. नाउ
डाइनर्स, डाइन है वर्ब, खाना खाना, डाइन, डाइनर्स खाना खाने वाले, डिनर खाना, और डाइनिंग टेबल जिस पे खाना सर्व किया जाता है। द डाइनर्स डिस्कस द क्रॉप्स, डाइनर्स जो थे उन्होंने फसलों को डिस्कस किया, उनके बारे में गुफ्तगू की। एंड द वेदर, और मौसम के बारे में, विच वॉज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स, मौसम जो कि बहुत ही खुशगवार था, सूटेबल था सब्ज़ फसलों के लिए, सब्ज़ पत्तों वाली फसलों के लिए, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदम के लिए जो था वो फेवरेबल नहीं था, गंदम के लिए मुवाफिक नहीं था। ओके, यहाँ तक लेट अस सी द वोकेबलरी। नाउ एपिटाइजिंग, एपिटाइज भूख, एपिटाइजिंग वो चीज़ जो कि भूख को बढ़ाती है। That's why we note sometimes it is written on the syrup appetizers. Appetizers होते हैं ना, भूख को बढ़ाने वाले सिरप होते हैं, ठीक है। एपिटाइजिंग बढ़ाना, टेम्पटिंग या इनवाइटिंग, ओडोर अच्छी खुशबू को बोलते हैं, महक को बोलते हैं। देखकर हम कहते हैं स्मेल, स्मेल कैन बी गुड, स्मेल कैन बी बैड, बट ऑडर इज़ ऑलवेज अ गुड स्मेल, अच्छी खुशबू, महक जिसको हम कहते हैं ओडोर, और उसकी सिनोनिम इसका होगा एरोमा। ड्रिपिंग, ट्रिकलिंग टपकना, ट्रिकलिंग के मायने में आ जाएगा टपकना। ब्राउन स्किन, यहाँ पे क्या कहा गया है, फ्राइड मीट को, भुने हुए गोश्त को कहा गया है। इंक्रीज द एपिटाइट, एपिटाइट हमारा हो गया हंगर। एवरीबॉडीज माउथ वाटर, एवरीवन टोल्ड इज अफेयर्स, अफेयर्स हो गया डील, डीलिंग्स, बिजनेस मैटर्स। एंड फेवरेबल मीन्स सूटेबल, मुनासिब होना, मुवाफिक होना, सूटेबल, और एप्ट भी हो सकता है इसका मतलब, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ तक देख लेते हैं क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ओके, व्हाट टाइप ऑफ डिशेस वाज सर्व्ड इन द feast, या व्हाट वाज सर्व्ड इन द feast वेयर पीपल गैदर्ड आफ्टर द market day. The second question can be, what were the diners discussing on that specific day at the end of market day? Now let's continue. Suddenly at the sound of drum beat, अचानक क्या हुआ कि ढोल बजने की आवाज़ पे, in the court सहन में, everybody rose, हर कोई उठ खड़ा हुआ, from the seats, अपनी नशीद से। अब क्या हुआ कि अचानक सहन में ढोल बजने की आवाज़ से हर कोई अपनी नशीद से उठ खड़ा हुआ, एक्सेप्ट अ फ्यू वन, सिवाय चंद एक लोगों के, हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड्स, जिनके हाथों में अभी भी खाना था। अचानक क्या हुआ कि सहन में ढोल की बजने की आवाज़ पे हर बंदा अपनी नशीद से उठ खड़ा हुआ, सिवाय उन चंद एक लोगों के जिनके हाथों में अभी खाना था। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, ढोल बजने की आवाज़ रुकने के बाद, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल, ड्रम बीटर ने लोगों को पुकारा, हु वर नाउ अटेंटिव, जो कि मुतवज्जो थे, एंड इम्पेशेंटली, और बेसब्री से, वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतज़ार कर रहे थे, टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, कि वो अवामी ऐलान करे। ढोल बजने की आवाज़ रुकने के बाद ढोल बजाने वाले ने लोगों को पुकारा, वो लोग जो कि मुतवज्जो थे और बेसब्री से अवामी ऐलान का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट होगा, अवामी ऐलान, या जिसको हम कहेंगे ऐलाने आम। ऐलाने आम क्या होगा कि जो सबके लिए होगा, ऐलाने आम हो जाएगा। ओके जी, and the announcement starts from here and it is indicated with the start of inverted commas. So the announcement was, it is hereby made known, यहाँ पे आगाह किया जाता है, to the inhabitants of this place, यहाँ के रहने वालों को, and in general to all persons, और आम तौर पे तमाम लोगों को, in the market के, यहाँ पे ऐलान किया जाता है, आगाह किया जाता है यहाँ के रहने वाले लोगों को, और मार्केट में
तमाम लोगों को डेट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक के एक काला चमड़े का बटवा कंटेनिंग 500 शिलिंग्स, इसमें 500 शिलिंग्स थे, सम बिजनेस पेपर्स, कुछ कारोबारी कागजात थे, वॉज लॉस्ट ऑन द रोड बिटवीन 9 and 10 इन द मॉर्निंग, वॉज लॉस्ट ऑन द रोड, वो सड़क पे खो गया, बिटवीन 9 and 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 9-10 बजे के दरमियान। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड, ढूंढने वाले से इल्तमास है, टू रिटर्न द सेम, के उसको ऐसे ही लुटा दे, टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर के ऑफिस में, या टू मिस्टर जेम्स, या मिस्टर जेम्स को, द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, जो कि पब्लिक हॉल के केयर टेकर हैं, निगरान हैं। ढूंढने वाले से इल्तमास ये है कि वो इसको इसी तरह मेयर के ऑफिस में या मिस्टर जेम्स को लुटा दे। मिस्टर जेम्स जो कि अवामी हॉल का, जो पब्लिक हॉल का जो है वो निगरान है। देयर विल बी रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, और उसको 20 शिलिंग का रिवॉर्ड दिया जाएगा। इन्वर्टेड कॉमर्स आर क्लोज्ड हियर, सो द अनाउंसमेंट एंड्स हियर। Now note that the announcement was about the loss of black leather pocketbook. It was lost on the road in the morning between 9 and 10 a.m. The pocketbook contained 500 shillings and some business papers. The finder was requested to return the wallet or the pocketbook to Maria's office or to Mr. James. And who was Mr. James? Mr. James was the caretaker of that public hall, and there was also an announcement for a reward for the finder, and the reward would be of 20 shillings. Now note the vocabulary. After drumbeat had ceased, stopped, रुक जाना, stopped के मायनों में, called out होता है, called out होता है मदद के लिए पुकारना, दिस इज़ अ फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे है ऊंची आवाज़ में पुकारना, इसलिए हम इसका सिनोनिम करेंगे शाउट या येल। अटेंटिव एंड इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली होगा हमारा कीनली, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करना, इम्पेशेंटली का आ जाएगा, कीनली आ जाएगा, रेस्टलेसली भी आ सकता है। एंड देन पॉकेट बुक हो गया हमारा वॉलेट, पर्स को बोलते हैं, बटवे को बोलते हैं। उसके बाद आपका जी आ जाता है केयर टेकर आ जाता है। केयर टेकर हम कहते हैं निगरान को, निगरान होता है हमारा गार्डियन या कस्टोडियन। कस्टोडियन वो पर्सन होता है हु कीप्स द कस्टडी ऑफ समथिंग, निगरान या निगहबान के मायनों में होता है। देयर कैन बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट बाय द ड्रम बीटर। पेपर में आ सकता है लाइक व्हाट वाज द पब्लिक अनाउंसमेंट बाय द ड्रम बीटर। नाउ अगर आपने इसको अनाउंसमेंट को एज इट इज़ लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमर्स पुट करें और उसमें कोई मिस्टेक ना करें, जिस तरह से आपकी बुक में है इसी तरह से लिखें। अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव करके लिखते हैं देन यू मस्ट चेंज इट इनटू इन डायरेक्ट स्पीच। उसमें फिर आपका पंक्चुएशन मार्क्स का भी चेंज आ जाएगा और आपका प्रोनाउंस का भी चेंज आ जाएगा और टेंस का चेंज भी आ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज आफ्टर द मील had concluded, the chief of the police appeared on the scene. आफ्टर द मील had concluded, खाना ख़त्म होने के बाद द चीफ ऑफ द पुलिस, पुलिस का चीफ appeared आन पहुंचा ऑन द सीन, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। खाना ख़त्म होने के बाद पुलिस का चीफ भी उस मुकाम पे, उस जगह पे आ पहुंचा। जैसे उनकी वोकैबुलरी में हम उसको कहते हैं जाए वकूआ पे आ पहुंचा। ही इंक्वायर्ड, उसने दरियाफ्त किया। अब इंक्वायर्ड आपका क्वेश्चन भी हो सकता है, अब इंक्वायर्ड आपका आस्क्ड भी हो सकता है, लेकिन इंक्वायर्ड इज़ मोर पावरफुल देन ऑल द अदर वर्ड्स। ठीक है, बाकियों से पावरफुल हो गया आपका। एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर ऑफिशियल इंक्वायरी, ऑफिशियल इंक्वायरी के लिए इंक्वायर्ड का वर्ड यूज़ होगा। अब उसने पूछा इज़ मिस्टर ह्यूबर्ट हियर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पे हैं? मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि टेबल के किनारे पे बैठे, रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया हियर आई एम, जी मैं यहाँ हूँ। ना नोट सीटेड, बैठे हुए। द यूज़ ऑफ पास्ट पार्टिसिपल,
जो कि बैठे हुए थे टेबल के कोने में, उन्होंने जवाब दिया, ये मैं यहाँ हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम, वो उनके पास गया। वेंट अप टू हिम, वेंट अप जाना, टू हिम टूवर्ड्स हिम, उनकी तरफ गया। एंड सेड, और बोला, ठीक है, यहाँ पे आपका डबल आ गया प्रेपोजिशन का यूज़। मिस्टर ह्यूबर्ट, विल यू प्लीज़ accompany मी टू द मेयर्स ऑफिस, द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू। मिस्टर ह्यूबर्ट, क्या आप मेरे साथ चलेंगे मेयर्स के ऑफिस तक? द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर ने आपसे बात करनी है। accompany, escort, 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 किसी के साथ साथ चलना। क्या आप मेरे साथ चलेंगे मेयर के ऑफिस तक? मेयर आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब्ड फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, मिस्टर ह्यूबर्ट बेचारा हैरान परेशान, एंड डिस्टर्ब्ड परेशान, बेचारा हैरान परेशान, फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के पीछे पीछे चला गया। द मेयर, a stout serious man, was waiting for Hubert. The mayor, a stout. What type of man of mayor, or what was his physical appearance? He was stout, मोटा ताज़ा। अब मोटा होता है फैट के मायने में आएगा, बल्कि के मायने में आएगा। मोटा सा, सीरियस, संजीदा सा बंदा was waiting for Hubert, ह्यूबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। Mr. Hubert, he said, you were seen this morning to pick up the pocket book lost by Mr. James. मिस्टर ह्यूबर्ट, आपको देखा गया। Now note the sentence structure. You were seen. आपको देखा गया। Passive voice. आपको देखा गया दिस मॉर्निंग, आज सुबह, टू पिक अप द पॉकेट बुक, बटवा उठाते हुए, लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, जो मिस्टर जेम्स से खो गया था। मेयर बोला कि मिस्टर ह्यूबर्ट, आपको मिस्टर जेम्स का गुमशुदा बटवा उठाते हुए आज सुबह देखा गया। मिस्टर ह्यूबर्ट, द सिंपल कंट्री मैन, लुक्ड एट द मेयर astounded and already terrified by the suspicion resting on him. मिस्टर ह्यूबर्ट, द सिंपल कंट्री मैन, मिस्टर ह्यूबर्ट सीधा साधा देहाती शख्स। लुक्ड एट द मेयर, उसने मेयर को देखा, astounded हक्का बक्का होके। Now the word astounded had been read in the story Button Button, and in that story it was used for Arthur. ह्यूबर्ट हक्का बक्का, मिस्टर ह्यूबर्ट सादा देहाती, उसने मेयर की तरफ देखा हक्का बक्का होके, एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, वो तो पहले ही डरा हुआ था। टेरिफाइड, हॉरिफाइड बाय द सस्पिशन रेस्टिंग ऑन हिम, उस शख्स से जो उस पर किया जा रहा था। सस्पिशन, डाउट, रेस्टिंग ऑन हिम, जो उस पर किया जा रहा था, उस पर डाला जा रहा था, उस पर किया जा रहा था। वाई मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, क्या मैंने बटवा उठाया? येस यू योर सेल्फ, जी हाँ तुमने खुद उठाया। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, आई नेवर हर्ड ऑफ इट, कसम से मुझे अपने इज्जत व वक़ार की कसम, आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं। बट यू वर सीन, लेकिन तुम्हें देखा गया था। ओके, दिस पैराग्राफ इज highly important regarding the use of punctuation marks. Before that, let us have a look at the vocabulary once again. Appeared, emerged, on the scene, on the spot, inquired, asked, accompany, escort, surprised, amazed, stout, fat, astounded, stunned, important word astounded, terrified, horrified, suspicion, doubt, resting on him, जो उस पे किया जा रहा था। Now note the use of a lot of punctuation marks. Sometimes it so happens that the writer mentions the speaker first and the speech later on, but most of the time in your short story book it happens that speech occurs before the speaker. दोबारा से सुन लें, क्या होता है, पहले होती है हमारी बाज़ औक़ात रिपोर्टिंग स्पीच, बाद में आती है रिपोर्टेड स्पीच।
लेकिन आपकी बुक में ज़्यादातर क्या है, पहले है रिपोर्टेड स्पीच और बाद में है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये वो पैराग्राफ है कि जहाँ पे रिपोर्टेड स्पीचेस तो हैं but the characters or the speakers are missing there, and we have to segregate the speeches with the use of inverted commas. Now note here, he inquired, comma, is Mr. Hubert here? Whenever we have to segregate or whenever we have to separate the reporting speech from the reported speech, we have to put the comma, then we shall start inverted commas. क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ है? इंक्वायर्ड उसने चूँकि पूछा था, सो इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. अगेन द टेबल, एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड. अगेन रिपोर्टिंग स्पीच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच विद द यूज ऑफ कॉमा. यहाँ पे देख लें. देन आपका आ जाता है मिस्टर ह्यूबर्ट, whenever we address someone, Mr. Hubert, whenever we do say sir, whenever we do say ma'am, we always put comma after that address. Mr. Hubert, comma, sir, comma, ma'am, comma. Okay, the next is यहाँ पे आ जाता है okay, the mayor a stout serious man. Whenever we have to give the introduction of a person like the mayor, मेयर का नाम पहले लिखा गया, अब बाद में हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि वो किस तरह का शख्स है. अ स्टाउट सीरियस मैन. अब मेयर को उसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक से सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉमा, द मेयर, कॉमा, अ स्टाउट सीरियस मैन. इन द सेम वे मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्री मैन. मिस्टर ह्यूबर्ट एंड हिज इंट्रोडक्शन इज द सिंपल कंट्री मैन, एंड इट इज़ सेपरेटेड विद द यूज़ ऑफ comma here. Now note the last two lines, very very important. The last two lines. Why me picked up the pocket book. Okay, here occurs question mark, and once again question mark, and another question mark at the end of the sentence. अब यहाँ पे वाई के बाद कॉमा, मी. अब मी के बाद कॉमा क्यों आ रहा है? ड्यू टू द स्टाइल ऑफ ह्यूबर्ट. उसकी हैरत, उसका सवालिया अंदाज, उसके लिए यहाँ पे मी के बाद क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है और मी के एम को कैपिटलाइज किया गया है. मी टू एम्फिसाइज द स्टाइल ऑफ ह्यूबर्ट, to emphasize his shock, to emphasize his interrogative style, the writer has used 3 interrogative marks in the whole of the line here. Now note, why me picked up the pocket book? Yes, you yourself. It is the speech of mayor, but we are not told about that. Then inverted commas stop here, again inverted commas start, and from that we guess that here the speech changes, here the speaker changes. By my word of honor, I never heard of it. ये किसने कहा? ये ह्यूबर्ट ने कहा. कि कसम से, अपनी इज्जत की, अपने वकार की कसम, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना भी नहीं, लेकिन हमें ये बताया नहीं कि ह्यूबर्ट बोला था. We have to judge about that only by the use of inverted commas by the author. But you were seen, again this is the speech of, you were seen, this is the speech of the mayor. लेकिन हमें ये नहीं बताया said mayor, told mayor नहीं कहा गया. हमें बस पता चल रहा है जहाँ पे इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पे इनवर्टेड कॉमा एंड हो रहे हैं, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट स्पीकर की स्पीच स्टार्ट हो रही है. सो दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग पंक्चुएशन मार्क्स. आप लोगों ने क्या करना है, दिस इज़ योर असाइनमेंट लाइक, क्या करना है, इस पैराग्राफ को अनपंक्चुएटेड लिख लें, बाद में इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, पंक्चुएशन मार्क्स पुट करके इसकी प्रैक्टिस करें. इट वुड बी अ वेरी productive work for you. Okay, let us continue. I was seen with the pocket book.
मुझे बटवे के साथ देखा गया। हु सॉ मी, किसने देखा मुझे? मिस्टर मनैना द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक। मिस्टर मनैना द हार्नेस मैन, जो घोड़ों की देखभाल करने वाला है, सॉ यू, उसने तुम्हें देखा, पिक अप द पॉकेट बुक, पर्स उठाते हुए। नाउ अगेन इंट्रोगेटिव मार्क्स and the use of inverted commas. Mr. Manana, the introduction, Mr. Manana comma, and his introduction is that he was a harness man. Harness man is the person who looks after the horses. Mr. Hubert, the old man, remembered. Mr. Hubert comma, the old man, वो बूढ़ा शख्स comma, remembered, उसको याद आ गया comma, understood, वो समझ गया, and flushed with anger, और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया. Now note the use of commas here. Old man, remembered, understood. So यहाँ पे देखें यूज़ ऑफ कॉमास कि किस तरह एक सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को या वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ हो रहा है. Now in the above paragraph we were told that Mr. Hubert was a simple man. He was a countryman. Here we are told that he was an old man. So the writer is also telling us about the qualities of, or the introduction of the qualities of Hubert. He was old. He was simple. Simple mean innocent. He was countryman. Countryman mean farmer, rustic, देहाती, सादा लो इंसान. तो इनको देख के साथ साथ हमारा वो क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा जो अक्सर आ जाता है, राइट फ्यू लाइंस ऑन द कैरेक्टर ऑफ ह्यूबर्ट. तो फिर उसके इंट्रोडक्शन में या उसके कैरेक्टर की लाइंस में हम इसको ऐड करेंगे. ओके जी. ओ हिम, यस, ओ अच्छा, ही सॉ मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हियर. अच्छा, उसने मुझे देखा होगा ये चीज़ उठाते हुए, पिकअप उठाते हुए, दिस स्ट्रिंग हियर, ये डोरी. एंड एज ही सेड सो, जैसा उसने कहा, जो ही वैसा बोला, ही ड्रू आउट द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट. उसने अपने पर्स से छोटा सारा डोरी का टुकड़ा निकाला. जो ही उसने ऐसा कहा तो उसने छोटा सा अपने पॉकेट से, अपनी जेब से रस्सी का टुकड़ा निकाल दिया. बट द मेयर शुक हिज हेड, लेकिन मेयर ने अपना सर ना में हिलाया और सेड, और बोला, यू विल नॉट मेक मी बिलीव दैट मिस्टर मनैना हुज अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस मिस्टूक द कॉट फॉर अ पॉकेट बुक. यू विल नॉट मेक मी बिलीव, तुम मुझे यकीन नहीं करवा सकते, तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकते. मेक मी बिलीव, द यूज़ ऑफ कॉजेटिव वर्ब, तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकते. डेट मिस्टर मनैना हु इज़ अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस, कि मिस्टर मनैना जो कि एक बाइज़्ज़त काबिल एतबार, जो बहुत ही काबिल एतबार शख्स है, मिस्टूक द कॉट, उसको गलती लगी फॉर अ पॉकेट बुक, और उसने जो है वो गलती से रस्सी को बटवा समझ लिया. तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकते कि मिस्टर मनैना जो कि इंतहाई काबिल एतबार बंदा है, उसको गलती लगी और उसने गलती से रस्सी को बटवा समझ लिया. ओके, नाउ द वोकेबलरी हियर, वर्दी, ऑनरेबल, credence, trust. It is also an important word from your synonyms point of view. Okay, the next is Mr. Hubert the peasant. Now again, Mr. Hubert was an old man. He was a simple man. He was a countryman, and he was also a peasant. वो एक किसान, दहकान. Furiously lifted his hand, उसने बड़े गुस्से से अपना हाथ उठाया. Spat at one side, एक तरफ थूका. To attest his honor, अपने इज़्ज़त नफ्स की तस्दीक के लिए. मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि किसान था, उसने गुस्से से अपना हाथ बुलंद किया और इज़्ज़त की तस्दीक के लिए एक तरफ थूका. एंड सेड इन द मोस्ट एक्सपेरेटिंग टोन, और इंतहाई गुस्सीले लहजे में बोला, इट इज़ कॉमा नेवरदलेस, बावजूद इसके, ट्रूथ ऑफ गुड गॉड, कसम से, ट्रूथ ऑफ गुड गॉड, कसम से या रब गवाह है, द सेक्रेट ट्रूथ, कि ये सच्चाई है, मुकद्दस सच्चाई है. दोबारा से सुन लें. मिस्टर ह्यूबर्ट जो किसान था, उसने अपना हाथ उठाया,
उसने गुस्से से अपना हाथ उठाया, एक तरफ थूका अपने इज़्ज़त नफ्स की तस्दीक के लिए और बहुत ही गुस्सीले अंदाज में बोला, ताहम ये बावजूद इसके ये एक सच्चाई है, कसम से एक मुक़द्दस सच्चाई है। आई रिपीट इट, मैं इसको दोहराता हूँ, ऑन माई सोल एंड माई सल्वेशन, ऑन माई सोल अपनी रूह की आफ़ियत, एंड माई सल्वेशन और अपनी निजात की खातिर मैं इसको दोहराता हूँ। इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी हियर, फ्यूरियसली, एंग्रीली, गुस्से में। एग्जैस्परेटिंग वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट आल्सो मीन्स गुस्से में, अब देख लें गुस्से में यहाँ पे हम एंग्री, फ्यूरियसली, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से की बात हो रही है, और फ्यूरियसली आ गया, एंग्रीली आ गया, नॉइड भी आ सकता है। देन आपका आ जाता है नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब इन सारी बातों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ इट होता है, इसको कहते हैं। सोल एंड माई सल्वेशन, सल्वेशन हो गया हमारा निजात, बचना हो गया सेव, और रेस्क्यू भी हो गया बचाओ, और निजात हो गया सल्वेशन, सल्वेशन हो गया रिडेम्पशन, निजात। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, वो चीज़ उठाने के बाद यानी पर्स उठाने के बाद, यू स्टूड देयर, आप वहाँ पे खड़े रहे हो, लुकिंग अ लॉन्ग वाइल, काफ़ी देर तक देखते रहे हो, इन द मड, कीचड़ में, टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ एनी मनी हैड फॉलन आउट, कि कोई रकम गिर तो नहीं गई। नाउ नोट, आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, कॉमा, यू स्टूड देयर, कॉमा, लुकिंग अ लॉन्ग वाइल इन द मड टू सी इफ़ एनी मनी हैड फॉलन आउट। रकम उठाने के बाद, बटवा उठाने के बाद तुम वहाँ खड़े रहे हो और काफ़ी देर कीचड़ में देखते रहे कि आया कि कोई रकम बाहर तो नहीं गिर गई। सो फॉल आउट, गिरना, ठीक है। अब यहाँ पे ये है फ्रेजल वर्ब। आई शैल स्टॉप हियर, वी शैल कंटिन्यू द लेक्चर टुमारो, एंड प्लीज़ लर्न द ट्रांसलेशन ऑफ द स्टोरी and try to write down the translation of important paragraphs on your notebooks and learn the synonyms by heart. Till tomorrow, goodbye. Allah Hafiz.